Good morning. I hope you can see my screen now. आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? कैसे हैं आप सभी? Okay, so yesterday we completed production and factors of production also. The next topic in your syllabus is law of variable proportion and returns to scale. कल तक जो हमने कवर कर लिया था टॉपिक, उस टॉपिक तक आपका सिलेबस है जो यूनिट एमसीक्यू टेस्ट में आएगा, यूनिट 3 एंड फ्रॉम 4th यूनिट इट इज अंटिल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. So law of variable proportions and returns to scale we are going to cover today. I hope everybody of you is able to hear me and I'm audible and my screen is also visible to you. Just give me a confirmation, somebody. Shall I proceed? Yes, audible. थैंक यू निखिल. ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड. जो मैंने डिस्कस किया था टाइमिंग्स की, वेडनेसडे को क्लास टाइमिंग्स में टेस्ट होगा, वो नहीं हो पा रहा है एंड क्लासेस आर टू बी कंडक्टेड द वे दे आर बिकॉज ऑफ द सिलेबस कवरेज एंड ऑल दोस थिंग्स. तो इसीलिए मैंने टाइम थोड़ा सा चेंज करके वही रख दिया है जो लास्ट एमसीक्यू का भी था, so that we can conduct our classes tomorrow. And in the evening you can just take out 20 minutes for your test and you can proceed with that. So your email id, please have your email id handy because you will have to mention your email id before you start your test. Mention that, log into that email id, only then you will be able to start your test. This is just for your information. ओके, सो नेक्स्ट किसी को अभी तक कुछ टॉपिक में किसी ने कुछ भी क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिए रिलेटेड टू एमसीक्यू और एनीथिंग लाइक दैट. Although we will have our classes tomorrow also, you can go through your units, your syllabus, whatever it is, module 3. It is all related to demand, elasticity of demand, and other topics, demand forecasting and production, which we completed yesterday. All those topics will be covered and it is the syllabus for your tomorrow's MCQ. Second one. In any case, if you find any difficulty or any issue, any problem, you can call me up later also after the class, or maybe you can ask the same on WhatsApp also if you stuck somewhere while preparing for your test. So now the next topic is law of variable proportion and law of returns. These two laws are related to basically production function. Since we have studied already what production is, we are knowing that okay, anything which we produce and get any output through any economic, it can be any economic activity also, it can be any process which takes place maybe anywhere in the organization or anywhere in any economy also. Those all processes basically are the production processes which gives us some output, and the factors of production were those things which we are using as inputs: land, labor, capital, and entrepreneur. Those four factors were the factors of production which we use as inputs, and through the process of production and using those inputs we get some output. This was all the summary which we studied yesterday. I completed the topic yesterday, production and studies of production. Now to study law of variable proportion and returns to scale, we will also have to understand what exactly is production function.
और what are the production functions? जैसे मैंने आपको बताया that these land labor capital entrepreneurs, these are acting as the inputs for the production process, and then the process takes place maybe in the offices or in the factories, anywhere, and then we produce through that process, and with the help of these inputs we get some outputs can be in the form of finished goods which can directly be consumed by the consumer. Outputs can be not consumable products, but they can be some other commercial products which can further be used to produce some other finished products. Means अगर मैं कह रही हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो डायरेक्टली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनके फिनिश प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मार्केट में कंज्यूमर्स कंज्यूम नहीं करते, बट वो अपने प्रोडक्ट्स किसी और दूसरी कंपनीज के लिए बनाती हैं, और वो प्रोडक्ट्स के जो बेसिकली बायर्स होते हैं वो कोई कंपनी ही बायर करके अपना फर्दर एक प्रोडक्ट बनाती है। ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं मुझे? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा? फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कार्स प्रोड्यूस होती हैं, उनके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज छोटे छोटे कार्स के पार्ट्स बनाती हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती हैं, जैसे ब्रेक्स हो गया, क्लच हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, व्हील्स हो गए। तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली जो रिटेल कंज्यूमर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं इन प्रोडक्ट्स के, और ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली कंज्यूम करने के लिए कंपनीज बाय करती हैं इन ऑर्डर टू मेक देयर फर्दर बिगर फिनिश प्रोडक्ट, कि वो कार्स में जो भी मैन्युफैक्चरिंग कार की कंपनीज हैं वो उन सब प्रोडक्ट्स को बाय करती हैं और फिर फर्दर वो भी यूज़ करती हैं आगे फिनिश प्रोडक्ट में। तो हम कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन से कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिल रहा है, वो चाहे तो गुड्स की फॉर्म में हो, चाहे तो वो सर्विसेज की फॉर्म में भी हो सकता है, कि हम किसी गुड को ही सर्विस गुड्स किसी गुड की ही हम सर्विस दे रहे हैं, मे बी ऑन रेंटल बेसिस और समथिंग, और वो हम उससे हम अर्निंग कर रहे हैं, तो वो दैट कैन ऑल्सो बी आर आउटपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। कुछ भी प्रोडक्ट हमारा हो सकता है जो हम प्रोडक्शन फंक्शंस के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज इनपुट्स वी कैन यूज फॉर द डायरेक्ट कंजम्पशन, चाहे वो कार प्रोड्यूस कर रहे हों, चाहे वो हम कोई घर बना रहे हों। देर आर सो मेनी बिल्डर्स, और द रियल एस्टेट दीज डेज इन लास्ट 5-10 years आई वुड से इज द emerging इंडस्ट्री, जो पहले नहीं हुआ करता था अब, क्योंकि ये रियल एस्टेट इज द इंडस्ट्री बेसिकली विच इज इनटू बिल्डिंग्स, flats and all that. So building the houses or the flats and all that, and then selling them as the product is also a very profitable industry these days. तो उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं कि वो फ्लैट्स या हाउसेस बने बनाए बना रहे हैं, पहले तो बना रहे हैं और बने बनाए और रेडीमेड वो फिर आगे फर्दर सेल कर रहे हैं कंज्यूमर्स को। दोज कंज्यूमर्स हु डू नॉट हैव टाइम टू एक्चुअली बिल्ड देयर हाउसेस, they can buy those things as the readily available for them, like ready to move in things. कुछ कंपनीज है कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स भी बनाती हैं, जैसे फूड हो गया, वी गो आउट इन द रेस्टोरेंट एंड वी कंज्यूम द प्रोडक्ट्स एंड लाइक फूड थिंग्स एंड वी come back that way. So those companies are also producing and earning so well, like McD ho gaya, yeah, there are so many other brands, big brands which are the global brands in the market, and they are available almost everywhere in all the countries of the world. So ये सब production function हो गया. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, क्या होता है, एंड रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, क्या बेसिकली इसका फंक्शन है, एंड हाउ डज इट हेल्प इन प्रोडक्शन फंक्शन, वो अब हम पढ़ेंगे। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड वी शुड अंडरस्टैंड इट व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शंस आर. So these basically are the production functions that we use these inputs. You can use this diagram, make this diagram in your exams also if you feel, because try attempting your all the answers, even the theoretical answers, diagrammatically, so that you can score good. So this picture is showing everything. इतना explanation की भी ज़रूरत नहीं है, but because picture speaks a lot, so you can further explain this in your language also, that what exactly this picture of production function says, in case you get the question about law of variable proportion and or returns to scale or something. So you will have to start explaining this question from production functions. So production function क्या हुआ? It can be an equation, table, graph, कुछ भी ऐसी चीज जो present करता है the maximum amount of a commodity that a firm can produce. Give me a minute.
A production function can be any equation, table or graph presenting the maximum amount of a commodity that a firm can produce from a given set of inputs during a period of time. किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या किसी भी टाइम स्पेसिफिक टाइम की हम अगर बात करें कि उस टाइम पीरियड में जितने भी हमारे पास इनपुट्स हैं, फैक्टर्स ऑफ इनपुट्स हैं, उन सब इनपुट्स को यूज करते हुए एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में हम कितना आउटपुट मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है. Every economy or every organization also, wherever production is taking place, we always try to uh, have the optimum utilization of our inputs or the factors of production, whatever inputs we have, ताकि हम उसको waste ना करें और प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू हम एक मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ सकें. हम मतलब मैक्सिमम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के दो ही प्रोसेस हैं, या तो हम आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें या हम इनपुट को फुल यूटिलाइजेशन करके आउटपुट को क्वालिटी वाइज उसका क्वालिटी बढ़ा सकें या क्वांटिटी बढ़ा सकें, कुछ भी एक चीज. गिव मी अ मिनट. So production can understood that production function can be any table or graph which is showing us that maximum output हमारा क्या निकलेगा किसी भी given period of time में अगर हम अपने given inputs को fuller utilize कर रहे हैं या optimum utilize कर रहे हैं, तो that is the production function what we call as. So production function एक mathematical equation या formula के हिसाब से इस तरह से भी use होता है. Production function Q is the dependent variable which stands for the quantity of output. मतलब हमारा Q is the basically output, quantity of output. Output मतलब क्या finished product हमारा निकल रहा है after the production, उसकी क्या क्वांटिटी है. हम 100 यूनिट्स बना पा रहे हैं, 200 यूनिट्स बना पा रहे हैं. सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग अ कार काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट कार है, तो हम वो कितनी यूनिट्स बना पा रहे हैं, वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है. वो कैसे निकलेगा, फैक्टर्स ऑफ इनपुट जो भी हैं हमारे, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू व्हाटएवर यूटिलाइजेशन इनटू द थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ABC जो भी हैं, ये सारे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, लैंड लेबर कैपिटल जो भी है विद द एक्सपर्टीज ऑफ एंटरप्रेन्योर आल्सो, ये सारी चीज़ों का उनका कॉस्टिंग कितना है एंड ऑल दैट, वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल गिव अस द क्वांटिटी ऑफ आवर आउटपुट व्हिच विल बी produced by using all those inputs. अब देखिए प्रोडक्शन फंक्शन हमें समझ आएगा कि प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस ही है जिससे कि हम इनपुट्स यूज कर रहे हैं, आउटपुट्स निकाल रहे हैं. यही है चीज एक प्रोडक्शन फंक्शन. टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस आर देयर, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो होते हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो होते हैं. तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो फंक्शंस हो गए हमारे, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट रन के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो हमारा टॉपिक है. और दूसरा हमारा हो गया रिटर्न्स टू स्केल. गिव मी अ मिनट. शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन अगर सपोज आपको आता है, या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सपोज आप नेक्स्ट MCQ में होता है, या मे बी आपका एक जो भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आता है, फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, कोई शॉर्ट नोट ही आ जाता है. सो यू शुड अंडरस्टैंड शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि वो दूसरे तरीके से आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. So you have to explain this then. In this case basically short term production function, क्यों, क्योंकि law of variable proportion आप इस तरह से भी इसको remember कर सकते हैं. variable वर्ड जहाँ पे आ रहा है, वेरिएबल जो होते हैं बेसिकली शॉर्ट रन में हम वेरिएबल जो हमारा इनपुट है सिर्फ उसी को वेरी कर सकते हैं, फिक्स्ड को हम नहीं चेंज कर सकते. फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं. जैसे हम किसी भी कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कॉस्ट होती है, दो तरह से कॉस्ट होती है, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है और कुछ
एंड कुछ होती है वेरिएबल कॉस्ट्स। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, वो सब जैसे रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया, कुछ ह्यूमन कैपिटल को अप डाउन करना है, सैलरीज हो गई, ये सारी चीज़ें वेरिएबल फैक्टर्स हैं कि ज़्यादा हम एम्प्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, वेरी करेगा। अगर कम चाहिए होगा तो प्रोडक्शन अगर कम करना है तो वो वेरिएबल इनपुट्स भी कम हो जाते हैं और उनका कॉस्ट भी कम होता है। लेकिन फिक्स जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहता है, शॉर्ट रन में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। फिक्स कॉस्ट जैसे कि लैंड बिल्डिंग बाय करना, ऑफिस स्टैब्लिश करना, कोई नई फैक्ट्री डालना, नई फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ी मशीनरी खरीदना जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो हमें रिटर्न्स काफ़ी लॉन्ग टाइम तक देते हैं, वो होते हैं कॉस्ट फिक्स्ड वाले। So shorter in production function में the producer will keep all his fixed factors constant, जो मैंने आपको बोला अभी कि जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं जैसे कि ये लैंड बिल्डिंग ये सब, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ अ बिजनेस ऑल्सो कि फिक्स फैक्टर्स जो हमारे हैं इनपुट के, उनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर पाते। हम जनरली ऑफिस नहीं जल्दी चेंज कर पाएंगे, ऑफिस लोकेशन नहीं जल्दी चेंज कर पाएंगे, इवन हमारे पास कॉस्ट हो भी, पैसा है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिश करना, नई जगह पे सेटल होना, बहुत बहुत सब कुछ टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। और कहीं पर अगर हम स्टैब्लिश कुछ नया कर रहे हैं तो सो मेनी थिंग्स आपको, हमें रेंट एग्रीमेंट्स बनाने पड़ेंगे या एक्चुअली में लैंड बिल्डिंग खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग को बनवाना पड़ेगा और कितनी सारी चीज़ें हमें वहाँ पर स्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रिसिटी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फर्नीचर होगा। तो ये सब चीज़ें हम शॉर्ट टर्म में, ऐसा नहीं है कि कभी भी जब चाहा तब कर लिया। तो हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हम अज्यूम करते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, he will be keeping all his fixed factors constant and will change only a few variable factor variable। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स इनपुट के हैं हम उनको जिनको चेंज कर पा रहे हैं वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। वेरिएबल प्रोपोर्शन के कितने प्रोपोर्शन में हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर पा रहे हैं शॉर्ट रन में इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब दूसरा जो हमारा है वो है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इस केस में क्या करते हैं, लॉन्ग रन थोड़ा बड़ा टाइम होता है, लॉन्ग टाइम होता है। इसमें अगर हम चाहें भी कि अपने जो फिक्स्ड हमारे इनपुट्स हैं, अगर हमें लगता है कि उनको हमें चेंज करना है, हमें कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट किसी तरह से चेंज करने से कम हो रही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है, जो कि सपोज लैंड बिल्डिंग हमारा एक बार इन्वेस्ट हो गया वो तो फिक्स्ड रहेगा। अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से कम हो रहा है और हमें अपने फिक्स्ड कॉस्ट को चेंज करना चाहिए, कम करना चाहिए, या एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो ज़्यादा करना पड़ेगा, शायद नया ऑफिस स्टार्ट करना पड़े। एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज़। Okay, so we can plan changing those fixed things in the long run also, कि मतलब हम शॉर्ट टर्म में जो चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं वो हम लॉन्ग रन में भी कर पाते हैं। वी कैन ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू ऑफिस, वी कैन ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू फैक्ट्री, वी कैन ऑलवेज बाय बिग मशीनरीज, या अपने आप को रिलोकेट करना है, ऑफिस का लोकेशन ही चेंज करना है एंड वी वुड रियली वांट टू हैव मोर सूटेबल ऑपरेशनल ऑफिस समवेयर, हम वो भी चेंज कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन जो है वो बहुत बड़ा टाइम होता है, लंबा टाइम होता है, जिसमें हम सब कुछ प्लान करके कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में बेसिकली हम देखें तो हमारे सारे इनपुट्स जो होते हैं फैक्टर्स इनपुट के, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेरिएबल हैं। फिक्स्ड वालों को भी हम वेरी कर सकते हैं और जो वेरिएबल होते हैं वो तो वेरी शॉर्ट रन में ही करते हैं, तो लॉन्ग में तो कर ही सकते हैं। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर्स इनपुट जो है वो जो मैंने जैसे भी बताया, जो हमारे डेफिनेशन में भी आ रहा था, फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट्स। फिक्स इनपुट्स ये सारे हो गए, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ऑफिस, ट्रांसफर ऑफ एनी न्यू और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू ऑफिस, या कोई हम लैंड बाय, फर्नीचर इनफैक्ट भी इसमें ही आ जाते हैं। फर्नीचर्स जैसे कि अगर हम कोई नए लैंड या बिल्डिंग बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें इंटीरियर के लिए अपना फर्नीचर्स, या कहाँ पर एक्चुअली में प्रोडक्शन होगा, वो फैक्ट्री है तो फर्नीचर की शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़े, बट इंस्टॉलेशन ऑफ दोज मशीनरीज विल बी देयर। बट इफ इट इज़ द ऑफिस फॉर द स्टाफ पीपल टू सिट एंड परफॉर्म, तो हमें उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट भी चाहिए होगा, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स जो भी
बिल्डिंग में रहेगा जहाँ पर कि जो कि विल बी द सीटिंग अरेंजमेंट विच विल ऑल्सो इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, उसको भी हम फिक्स्ड इनपुट्स में ले लेते हैं। तो फिक्स्ड इनपुट्स जनरली क्वांटिटी ऑफ विच रिमेन्स द सेम इर्रिस्पेक्टिव द लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द फर्म। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो फिक्स्ड इनपुट्स हैं, जैसे कि हमने एक सपोज 20 या 50 लोगों की कैपेसिटी का एक हमने ऑफिस एरिया या लैंड हमने बाय कर लिया, जिसमें कि हम 50 लोगों को बिठाकर उनसे काम करवा सकते हैं। अब हमारा वो लैंड में इन्वेस्टमेंट तो हो गया, हमने जितना लैंड खरीदना था, 1 एकड़ का था या जो भी था, या सपोज 200 स्क्वायर यार्ड्स का कोई लैंड है या 500, कोई भी एक हमने लैंड ले लिया और हमने उसमें सिटिंग बना दिया कि ठीक है 500 और वॉट एवर ऑक्यूपेंसी हम चाहते हैं 100 पीपल, उसका हमने बाय कर लिया या हमने रेंट भी ले लिया, सपोज बाय भी नहीं कर रहे हैं, सो वी आर पेइंग रेंट एंड वी हैव द ऑफिस। So irrespective of whether 50 people will be coming in the office or 5 people will be coming to the office to produce, 10 people will be coming to the office to produce, that will not impact the rent of that land. That is fixed, will go same whether we come in more number of people and produce more, और whether we do not come, even 0 लोग भी आते हैं तो भी उसका रेंट जो है उस डे पर्टिकुलर डे का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल रिमेन सेम। तो दैट इज वाई वी से कि ये फिक्स्ड रह रहा है। हम कितना भी लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा रहे हैं या कम भी कर रहे हैं, उससे फिक्स कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इससे अच्छा है कि जब फिक्स कॉस्ट हमें उतनी ही देनी है तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा लें, ताकि उस जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट तो अदरवाइज भी कम नहीं हो रहा, और फिक्स कॉस्ट अदरवाइज हमारा एक लॉस है अगर हम प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड और यूज द फिक्स कॉस्ट या ब्रिंग डाउन फिक्स कॉस्ट, तो हम फिक्स कॉस्ट को कम तो नहीं कर सकते ना बढ़ा सकते, हमें अपना आउटपुट बढ़ा देना चाहिए सो दैट फिक्स्ड जो इनपुट हमारा है वो कम हो जाए। वेरिएबल इनपुट्स कौन से होते हैं? द क्वांटिटी ऑफ विच वेरीज, जिसकी वेरी कर रही है क्वांटिटी। जैसे ही हम अपना आउटपुट बढ़ाएंगे तो वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाने पड़ जाते हैं, कम करते हैं अगर हम आउटपुट तो वो कम भी लगता है। जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल बेसिकली वो चीज़ होती है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करके, या जो चीज़ यूज़ होती है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि अगर हम कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो प्लास्टिक विल बी अ रॉ मटेरियल, या अगर हम कोई आयरन का प्रोडक्ट, किसी भी एलिमेंट का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो एलिमेंट हमें किसी फॉर्म में तो चाहिए होगा जिसको कि हम रीशेप करें या कुछ भी करके हम उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू एक फिनिश गुड निकाल रहे हैं। तो रॉ मटेरियल, अगर हम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा प्लास्टिक चाहिए होगा, कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कम रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो इसीलिए ये वेरिएबल इनपुट्स हो गए, और ये हम कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, शॉर्ट रन में भी उतना ही ऑर्डर करेंगे हम रॉ मटेरियल जितना हमको चाहिए क्वांटिटी टू प्रोड्यूस। पावर हो गया, पावर इज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी समटाइम्स। अगर हमारी मतलब अगर प्रोडक्शन हमको कम करना है तो जो मशीनरीज हैं, मशीनरी की कॉस्ट तो फिक्स्ड है, लेकिन मशीनरीज चलाने के लिए हमको जो पावर चाहिए, जितना टाइम मशीनरी चलेगी उसकी पावर ज़्यादा आएगी, अगर ज़्यादा चल रही है कम आएगी, अगर कम चल रही है तो ये वेरिएबल इनपुट में पावर आ गया। मशीनरी फिक्स में चला गया क्योंकि वो एक बार दोबारा मशीनरी तो वापस जा नहीं रही है, वो हमारे पास आई गई है। फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, लेबर, ये सब चीज़। लेबर का मतलब ह्यूमन कैपिटल। बहुत बार क्या होता है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो हमें ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन कैपिटल जो हमने कल पढ़ा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, लेबर की भी ज़रूरत। तो अगर एक हमें प्रोडक्शन सपोज यूनिट 50 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत हो रही है, तो हम यूनिट अगर हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, 50 की जगह 100 करनी है, तो हमें वहाँ लेबर भी 5 से 10 करना पड़ेगा। सो दैट ऑल्सो कम्स इन वेरिएबल इनपुट्स की जो सैलरीज ऑफ द पीपल हो गई। क्वांटिटी का मतलब 5 से 10 लोग अगर हम बढ़ाएंगे तो 5 लोगों की सैलरी एक्स होता था, अब 10 लोगों का सैलरीज या उनका कॉस्ट जो है वो वाई एक अमाउंट होगा जो कि ज़्यादा है। अगर एंड वाई से वर्सा ऑल्सो, अगर हम कम कर रहे हैं तो फिर वो कम भी हो जाएगा। जो चीज़ कम या ज़्यादा हो रही है डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट, जो आउटपुट हमारा निकल रहा है, रिजल्ट हमारा निकल रहा है प्रोडक्शन का, वो अगर कम हो रहा है तो वेरिएबल इनपुट्स भी हमारे कम ही लगते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो वेरिएबल इनपुट्स ज़्यादा लगेंगे। फिक्स सेम रहेगा। नाउ टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? ये सारी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम एक ग्राफ के थ्रू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझेंगे और रिटर्न्स टू स्केल भी समझेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। टोटल प्रोडक्ट हमारा ये है, एवरेज प्रोडक्ट हमारा ये है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा ये है। तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं वो आपको पहले से पता होना चाहिए। टोटल प्रोडक्ट हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स, जो भी हम सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस करा जिसको हम आगे सेल करने वाले हैं,
1000 करा, 1 करोड़ करा, जो भी हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विल बी कॉल्ड एज टोटल प्रोडक्ट. गिव मी अ मिनट. सो टोटल प्रोडक्ट कैन बी रेज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट. जैसे मैंने बताया कि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज कब हो सकता है, वेरिएबल इनपुट्स बढ़ाएंगे तो आउटपुट बढ़ जाएगा, वेरिएबल इनपुट कम करेंगे तो आउटपुट कम आएगा. फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारा सेम ही रह रहा है. सो टोटल प्रोडक्ट में हो गया कि जो भी हम बेसिकली टोटल आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, दैट इज आवर टीपी, एवरेज प्रोडक्ट. नाउ एवरेज प्रोडक्ट कैन बी नोन बाय डिवाइडिंग द टोटल प्रोडक्ट. जो हमारा टीपी था, जितना हमने प्रोड्यूस किया, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आउटपुट जो हमारा आया बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. यानी कि एवरेज प्रोडक्ट कितना आ रहा है कि हमें सारा जितना भी प्रोडक्ट टोटल हमने प्रोड्यूस किया है उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे इनपुट्स जो वेरिएबल फैक्टर्स थे उससे, तो वो एवरेज निकल के आ जाएगा. हमने 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस की और 5000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा वेरिएबल इनपुट सपोज ह्यूमन कैपिटल लगा 5000 के लिए लगा सपोज 5, तो यानी कि एक ह्यूमन कैपिटल जो हमारा फैक्टर था वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रहा है. सो दैट इज द एवरेज. ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द वेरिएबल फैक्टर्स और द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. नाउ मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे ही हम कोई भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज 10 यूनिट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल यूज किया और 1000 हमने टीपी ले लिया, तो वो 10 इज इक्वल टू 1000 हो गया. अब नेक्स्ट अगर हम एक या दो वेरिएबल इनपुट्स अपना इंक्रीज कर रहे हैं, उन यूनिट्स को इंक्रीज करने के लिए हमारा जो नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस, टोटल प्रोडक्ट में जो हमारा यूनिट इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट्स, उस पर्टिकुलर एडिशनल जो हमारा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है जो हमें आउटपुट एक्स्ट्रा देगा, उसकी वजह से वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है. जैसे कि अगर हमने जैसे ये एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि 10 वेरिएबल फैक्टर्स का यूनिट अगर हमने लिया तो 10 इज गोइंग टू गिव यू 1000. सो क्या 15 हमको 15,000 देगा या 16,000 दे रहा है या 14,000 दे रहा है, तो वो ब्लेस्ड करके जो आएगा कि पहले हमारा टीपी इतना था टोटल प्रोडक्ट या आउटपुट, और अब एडिशनल यूनिट हमें डालने से फैक्टर वेरिएबल फैक्टर में हमें कितना इंक्रीज हुआ है आउटपुट में, वो मार्जिनल प्रोडक्ट है. डिफरेंस ऑफ द टोटल प्रोडक्ट बाय इंक्रीजिंग द मार्जिनल प्रोडक्ट. तो ये तीनों स्टेटमेंट्स का बेसिकली एक ही मीनिंग है. पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को. The rate at which the total product increases. TP किस रेट पर इंक्रीज हो रहा है is known as marginal product. किस रेट पर 10% 20% इंक्रीज हुआ, अगर 5% हमने वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज किया तो. Now addition to the total product resulting from a unit increase in the quantity of the variable factor. तीनों स्टेटमेंट्स का एक ही मीनिंग है. तीनों स्टेटमेंट्स आर गिविंग us that what exactly is the marginal product, कि हमारा एमपी क्या होता है. तो हमने टीपी पढ़ लिया, टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस किया वो. एवरेज प्रोडक्ट यानी कि हमने टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, हमारा एवरेज आ गया. मार्जिनल हो गया कि हमने कितना वेरिएबल फैक्टर जो है हमारा यूनिट को हमने इंक्रीज करने से हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, वो मार्जिनल हो गया. नाउ लेट्स सी दीज स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेजेस में हो रहा है. या तो हमें वो इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा होगा या डिक्रीजिंग रिटर्न दे रहा होगा, या एक तरीके से रिटर्न्स ना ही नहीं दे रहा होगा और नेगेटिव में चले जाएगा. तो हमें वो देखना है कि हमारा रिटर्न नेगेटिव में जब जा रहा है वो हमें एमपी ही बता पाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट. तब हमें एडिशनल यूनिट्स अपना लगाना बंद कर देना चाहिए जो हम वेरिएबल अपना इनपुट दे रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम मतलब एक रॉ मटेरियल को एक हद तक बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, बट एक लेवल पर आके हमें आउटपुट जो है वो उस लेवल का नहीं मिल रहा जिस लेवल का हमको मिलना चाहिए था. इनफैक्ट आउटपुट आकर हमारा डिक्रीज भी होने लगा समटाइम्स बिकॉज वी हैव एक्सप्लॉइटेड कंप्लीटली. हमारे पास
सपोज एक प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास मशीनरीज भी हैं, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास प्रॉपर फिक्स एक लैंड भी है, सब कुछ है। तो क्या हम अनलिमिटेड रॉ मटेरियल डालते रहेंगे तो क्या हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ आउटपुट आता रहेगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। देयर इज सम लिमिटेशंस ऑफ एवरीबडी, यूजेज ऑफ दोज मशीनरीज ऑल्सो, यूजेज ऑफ दैट ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो, हर चीज़ का एक लिमिटेड यूज है। ऑल्दो वी अज्यूम दैट यस, हम जितना यूनिट बढ़ाएंगे वेरिएबल फैक्टर का उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट एक लेवल आएगा जहाँ पे कि हम फुलर यूटिलाइजेशन कर चुके होंगे अपनी सब चीज़ों का, लैंड का भी, ह्यूमन कैपिटल का भी, सब चीज़ों का, या रॉ मटेरियल भी जितना हम कर सकते हैं, या हमारी मशीनरी जितना परफॉर्म करेंगे टोटल प्रोडक्ट, वो मशीनरीज की भी कैपेसिटी है। We cannot use the machines 24 hours, right? We cannot use the human capital 24 hours. एक मैक्सिमम लेवल है कि एक आदमी अगर ह्यूमन कैपिटल है, ही कैन नॉट वर्क मोर देन 9 आवर्स 10 आवर्स। बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो भी 12 घंटे शायद काम कर लेगा, 24 घंटे तो कोई काम नहीं कर सकता ना। तो देयर वुड बी अ टाइम व्हेन वी विल रीच अ पोजीशन जहाँ पे हमने कम्प्लीटली सब कुछ एक्सप्लॉइट करके अपने इनपुट्स को एक प्रोडक्शन दे दिया। तब उसके बाद अगर हम अपना इनपुट फिर भी बढ़ाए जा रहे हैं, वेरिएबल इनपुट को फिर भी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट नहीं बढ़ेगा, टोटल प्रोडक्ट जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो वो स्टेज क्या होती है, वहां पर हमको अग्री करना है कि दिस इज व्हाट द स्टेजेस वेयर वी हैव गॉट अ टोटल प्रोडक्ट, एंड नाउ बाय इंक्रीजिंग एनी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर या इनपुट को बढ़ाने से हमारा रिटर्न जो है वो डिक्रीजिंग मैनर में जा रहा है, या फिर अब लॉसेस में जाने लगा, नेगेटिव रिटर्न्स होने लगे। तो नेगेटिव रिटर्न्स का मतलब है कि हमारा वेरिएबल फैक्टर अब मिसयूज होने लगा है, हम उसको ना बढ़ाएं, रादर हम फ्यूचर के लिए रखें उसको। तो वो हमें पढ़ना है कि 3 स्टेजेस में। अब देखिए जैसे कि हम सॉरी इस कैपिटल को इस पर्टिकुलर हम इस डायग्राम को समझते हैं पहले, फिर इसी डायग्राम को हम ग्राफ में भी देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द कर्व्स। आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं पहले अटेंडेंस क्लिक कर लेती हूँ, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, मनीष यादव बेटा अपना नेम रीनेम करके रोल नंबर भी आगे डाल दीजिएगा। देयर आर 2 मनीष इन द क्लास। सो नाउ विल स्टडी दिस पर्टिकुलर टेबल कि ये क्या बता रहा है हमको। फिक्स जो हमारा फैक्टर है जो कि चेंज नहीं हो रहा लॉन्ग रन में, तो हो सकता है अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो, बट वी आर अज्यूमिंग कि जब हमारा लैंड और जो कैपिटल जो भी हमारा लगा हुआ है जो कि हम चेंज नहीं कर रहे हैं और फिक्स फैक्टर है हमारा, लैंड में जितना पैसा लग गया, बिल्डिंग में जितना पैसा लग गया, मशीनरीज में जितना पैसा लग गया, सपोज वो हमारी यूनिट्स हैं, टोटल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको 10 से। वो ईयर आफ्टर ईयर या मंथ आफ्टर मंथ वट एवर स्पेसिफिक टाइम वी आर कंसिडरिंग, वो 10 रह रहा है कांस्टेंट। पहले टेबल में हमने फिक्स्ड कॉस्ट ले लिया अपना 10, फिक्स्ड कॉस्ट भी लिख सकते हैं आप इसको यानी कि यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर हमने फिक्स ले लिया, 10 ले लिया। आप चाहते हैं इसको 100 में लेना तो आप 100 थाउजेंड्स में भी ले जा सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर मैंने बहुत छोटे जो हैं ये नंबर्स लिए हैं सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट कि हमें कर, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है और नेगेटिव रिटर्न्स क्या होता है।
नाउ वर्कर्स ले लेते हैं हम वेरिएबल फैक्टर में कि वेरिएबल फैक्टर्स वर्कर ले लिया हमने, या ह्यूमन कैपिटल जिसे हमने बोला, या लेबर जिसको हमने पढ़ा, लेबर जो हमारा बेसिकली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वर्कर्स थे कि हमने पहले टाइम में 0 अगर लगाया तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी 10 की 10 है, ये हमें अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी, प्रोडक्शन 0 है। टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ने जब काम ही नहीं करा, चाहे एक भी वर्कर जब हमने नहीं डिप्लॉय करा, आया ही नहीं, या हमने हमने खुद ही नहीं करा प्रोडक्शन वर्कर के थ्रू, या लेबर नहीं लगी, तो टोटल प्रोडक्ट हमारा 0 आया। लेकिन हमारी फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो फिर भी 10 रुपये हमको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, वो तो देना ही है। फिक्स कॉस्ट जो लग गया, बोलते हैं ना कई बार कि बिजनेस करना इट्स नॉट इजी, पैसा लगाना पड़ता है, तो फिक्स कॉस्ट जो आपने लगा दी पहली चीज, तो उसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। लगाने के बाद भी कौन 2 लोगों ने अभी ज्वाइन करा है बाबा, मैंने अटेंडेंस क्लिक कर लिया है, नाउ आई कैन सी दैट देयर आर 2 मोर पीपल, देयर आर फ्यू पीपल हु आर जस्ट जॉइनिंग फॉर द अटेंडेंस ओनली, हु आर दे हु हैव जॉइंड नाउ, अपने नाम बता दीजिए मुझे। ओके, नेक्स्ट में देखिए आप स्टेप में हमने वर्कर्स जो है 1 यूनिट बढ़ाया, सेकंड में 0 से हमने वर्कर 1 किया, हमारा टोटल प्रोडक्ट एक लेबर ने 6 कर दिया, यानी कि 6 यूनिट्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर पाए। फिर हमने एक और वर्कर को ऐड किया, 1 से 2 हमने वर्कर्स किया, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा अभी भी 10 चल रहा है, हमारा टोटल प्रोडक्ट आया 14, टोटल प्रोडक्ट हमारा 14 आ गया, यानी कि एक ने हमको 6 दिया और 2 ने हमको 12 की जगह 14 दिया, यानी कि नेक्स्ट जो वर्कर हमारा था, नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल जो हमारा हमने लगाया है यूनिट, उसने हमें 8 एडिशनल दिया है। तो MP इज इक्वल टू जो हमारा TP है उसके सामने वाला TP है, और उसके नेक्स्ट वाले TP से हम लेस करेंगे तो वो मार्जिनल आएगा, यानी कि एडिशनल हमने एक यूनिट 1 से 2 किया तो 14 - 6 करके 8 आ गया, दैट इज MP। ये इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है हमको अभी के 6। फिर हमने सेकंड एक और यूनिट ऑफ वर्कर हमने बढ़ाया, 2 से हमने 3 करा, तो हमारा TP जो है आप देखिए 24 पहुंच गया, 14 से 24, यानी कि 10 एडिशनल यूनिट्स हो गए। तो जो ये MP आपको दिख रहा है ना, MP कितना बढ़ता जा रहा है, और एवरेज प्रोडक्ट जिस तरीके से हमने एवरेज प्रोडक्ट का किया था कि हम डिवाइड कर देंगे 6 डिवाइडेड बाय 1, 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हम कर रहे हैं, तो वो एवरेज प्रोडक्ट आ रहा है। 6 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6, 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8, ये सारा एवरेज प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैंने आपको इसीलिए ये समझाया था कि TP क्या होता है, MP क्या होता है, एवरेज AB क्या होता है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट AP बोल सकते हैं इसको, ये एवरेज वैल्यू। तो ये इस तरह से हम एडिशनल वर्कर का एक एक बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। बट देयर विल कम अ स्टेज जहाँ पे हम अपना वर्कर 6 पर अगर हम पहुँचते हैं, या 4 के बाद ही हमको डिक्रीजिंग रिटर्न मिलना शुरू हो गया, 4 के बाद ही डिक्रीजिंग रिटर्न हमको मिलना शुरू हो गया। सॉरी 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 गाइस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फर्दर। हाफ टेबल जो बचा है हमारा, आई थिंक few only seconds are left for this class, so I'll just explain कि डिक्रीजिंग क्या होता है और नेगेटिव में कैसे चला गया, और एडिशनल हमारा वर्कर्स की जो भी वेरिएबल फैक्टर है उसको एडिशनल हम लेने से डिक्रीजिंग में भी जा रहा है, नेगेटिव में भी जा रहा है। सो आई जस्ट कवर इट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर टाइम एवरीवन।